Good morning, students. This is second day of your summer camp, yoga. Yoga summer camp, second day. Very good one. Students, today we will do yoga for respiratory system. Respiratory system is very beneficial for your health, your family health. Let's start yoga for your respiratory system. First asana. First asana we will do bridge pose. Carefully. Firstly, lay down. Back your legs. Your ribs and your respiratory system. Second is a Bhujangasana. It's very beneficial for your ribs, your respiratory system. Let's start. Firstly, lay down. Inhale, and up. Down. And up. This is Bhujangasana. Very beneficial for your lungs, your respiratory system, and your volume. Next is a third asana. This is a Dhanurasana. Firstly, lay down. Lay down. Touch your foot up. Down. Again up. Down. Asana is very beneficial for your respiratory system. Number 4. Next asana is for chakrasanas. Chakrasanas are also very beneficial for your health, your respiratory systems, and your volume. Firstly, lay down proper. Up. Back your hands. Touch your shoulders. Back your legs. Inhale and up. Again down. Again up. Again down. This is a chakrasanas. It stretch properly on your ribs, your respiratory system. Lay down. Proper. Back your hands. Head up. Down. Again up. Down. This asana is a fifth asana, respiratory system volume increase. Very beneficial. Do regularly 8 and 9 rounds in your home under guidance of your parents and your teacher. Stay home, stay safe, have a nice day. Welcome to online summer camp from Anand Public School. Today we will learn how to make attractive items from wood. So are you ready, students? So students, good morning. हम आज इसमें 2 things आपको prepare करना बताएंगे, that is newspaper holder and flower vase. And these material required. First one is wool, fevicol, stone, bottle, brush, broomsticks, wire, and scissor. So let's start. So students, see, we already made these things from the wool. So let us start one by one. Material, all material required.
जो आपको बोर्ड पे मैंने बताया भी है, ये सारा मटेरियल हमने असेंबल कर लिया। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये देख लेते हैं हमने क्या क्या इससे प्रिपेयर की है। फर्स्ट वन इज बॉटल वास ये बॉटल से बना आपका। दिस इज मैगजीन होल्डर, ठीक है, ये कोई भी आपका एम्प्टी बॉक्स है उससे बना है। और दिस इज आल्सो फ्लावर पॉट, ये भी हमने बॉटल और इसके लिए हमने यूज करी है एक्स-रे शीट। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। Yes, students, our first item is flower vase. Flower vase के लिए मैंने लिया है एक एम्प्टी बॉटल, ठीक है। अब इस बॉटल को बेस जो है, इसके बेस स्मूथनिंग के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसका वो कट किया है कटर से केयरफुली। और इसमें आप अपने मदर की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये ऐसे इसका जो है ये पार्ट हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो सेपरेट कर दिया, ठीक है। ऐसे आप रख के देख सकते हो। अगर इसका कहीं भी आपको लगे कि ये कम ज़्यादा है तो आप इसको दोबारा भी सीजर से इसको कट कर सकते हो। थोड़ा ग्लू इसमें डाला है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आप वाटर ऐड करोगे, वाटर को मिक्स करोगे आप। ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का एक पीस जो है आप आउटलाइन करोगे। आउटलाइन से आप करने के बाद आप इसको कटर से या सीजर से आप कट कर लोगे लाइक दिस। फिर हमने यहाँ इसका कार्डबोर्ड पर फेविकॉल ब्रश से हमने इसको अप्लाई किया, ठीक है। और बॉटल के साथ जो है हमने पेस्ट कर दिया लाइक दिस। अब इस पर हम कुछ टेपिंग कर लेंगे सो दैट ये पीले ना। यहाँ तक रेडी हो गया। जो फेविकॉल दिया था उसको आप वाटर बॉटल पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। हल्का हल्का करते जाएंगे। फूल को इसके साथ टाई करके एक नॉट लगाइए और उसके बाद इसको यहाँ रोल करते जाइए, ठीक है। जहाँ तक आपका हो गया ऐसे लाइक पर फिर जल्दी जल्दी आप इसको करते जाओगे, आप पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। बोतल को आपने जहाँ तक हमने ये कार्डबोर्ड इसके नीचे लगाया था, आपने सारा इसको कवर करना है सो दैट ये विजिबल ना हो। अब हमने ये लगाए हैं फ्लावर्स। अब मैं आपको फ्लावर्स बनाना बताती हूँ, ठीक है। हमने फ्लावर्स के लिए कोई भी एक कलर लिया, जैसे एक कलर लिया, इसको हमने 2 फिंगर पर हमने 8, 9 या 10 टाइम आप इसको रोल कर सकते हो। याद रखना अगर फर्स्ट टाइम आपने 10 टाइम किया है तो आप जब तक भी फ्लावर बनाओगे, जितने भी बनाओगे, आपको सेम ही रखना है। और इस पर ऐसे ही अपने फिंगर को के ऊपर इसको ऐसे किया और एक इसके ऊपर से इसने पे भी आपने एक टाइटली नॉट लगा देनी है। इसको कट किया, कट करने के बाद आप इसको ऐसे सीजर से कट कर दो साइड से इसकी, और ऐसे इसको एक बार फैला के थोड़ा और इसको इक्वल कर दो। फेविकॉल लगाकर एक बीड लगाना है ऐसे, ठीक है। रेडी हो गया, ठीक है। आपको समझ आ गया। ऐसे आपने 5, 6 या 4, 5 आपने फ्लावर्स ऐसे डिफरेंट कलर के बना लेने हैं। और इसको देखो, ये मैंने तो देखो ऐसे किया है, मैंने तो इस पर ऐसे पेस्ट किया। आप इसको सर्कल में भी पेस्ट कर सकते हो और आप इसको ऑल राउंड हर जगह भी आप थोड़े थोड़े गैप पर आप इसको पेस्ट कर सकते हो। यस, अब हम बनाते हैं ये फ्लावर्स, ठीक है। इन फ्लावर्स के लिए हमें क्या करना है, देखो मैंने अभी पहले मैंने येलो बनाए हुए हैं, अब मैं आपको ये सिखाती हूँ। पहले हमने 2 फिंगर पर बनाए थे, अब हम इसको 4 फिंगर पर रोल करेंगे। सेम लाइक 4 फिंगर पर इसको ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा, अगर पहले आपने 10 टाइम किए हैं अब आप 15 टाइम कर लो, ठीक है। और सेम आपने ऐसे ही इसको जो है सेंटर में इसके इसी थ्रेड से ही आपने जो है ऐसे करके और ऐसे 2 टाइम आपने इसको इस पर नॉट लगाया और नाउ कट इट। जो है सेंटर बनाया है मैंने। सेंटर में इसके जो ये बीड्स लगे हुए हैं, जो ये बीड्स लगे हैं, इसके लिए मैंने एक वायर ली, ठीक है। वायर में मैंने जो थे 2-3 बीड्स डाले, ऐसे इसमें बीड्स डाल दिए। जो भी दोनों किनारे हैं उनको आपने इस फ्लावर के सेंटर से निकालना है। दोनों जो इसके किनारे हैं दोनों को ऐसे आपने सेंटर से निकालना। और ये सभी जो बीड्स थे इसके सेंटर फ्लावर के जो थे सेंटर में ऐसे आ गए, ठीक है। अब ये जो वायर है, अब मैंने एक ब्रूम स्टिक ली। ब्रूम स्टिक लेकर मैंने क्या किया, ये वायर को इसके साथ अटैच किया
और इसी पर ही इसको रोल कर दिया। ये ऐसे थोड़ा सा इस पर फेविकोल लगाकर, और आपने ग्रीन जो वूल है आपने इसको इस पर बड़ी जल्दी जो है ऐसे रोल कर करके इस पर लपेट दिया। ठीक है, अगर आपको कहीं स्टिक विजिबल हो रही है तो आप डबल भी कर सकते हो, वापस आप इसी रोल को ऐसे ऊपर भी कर सकते हो। वापस इसको हमने जो था इसी के साथ ही वायर के साथ इसको टाई कर दिया। अगर नहीं होता तो आप उसको फेविकोल से भी आप फिक्स करते हो। तो ये भी बना सकते हो, सेम कलर की भी बना सकते हो। और मैंने इसको वाटर बॉटल में जो था वो इसे ऐसे एडजस्ट किया। ये जो थे स्टोन थे ना, जो स्टोन होते हैं, उसको इस बॉटल में मैंने थोड़ा सा डाल दिया सो दैट ये थोड़ी हैवी हो जाए और इसमें स्टिक जो है वो आराम से सेट हो जाए लाइक दिस। मैं आपको मैगजीन होल्डर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमने कोई भी ऐसे एक बॉक्स ले लेना है। ठीक है, ये बॉक्स है या प्लास्टिक का कंटेनर भी हो सकता है। ये दोनों साइड से आपका कट होना चाहिए लाइक दिस। ये दो लिए हमने इसको अंदर से लेके आए और पहले हम इसको नॉट लगा लेंगे, वूल को टाइट इसको एक नॉट लगानी है क्योंकि यही हमारी जो है वो कॉन्टिन्यूटी में आगे रहेगी वूल। नॉट लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो नॉट वाला पार्ट है ना, इसको आपने अंदर रखना है ऐसे। अब इसको जो बॉक्स है हमारा, इसको पूरा हमने वूल से कवर कर देना। लूज नहीं रखना आपने, लूज रखोगे तो आपकी नीटनेस नहीं आएगी लाइक दिस। कलर चेंज करने के लिए हमें नेक्स्ट कलर की वूल ली, फिर हमें इसको टाइट नॉट लगा लेना है लाइक दिस। फिर से आपने इसे स्टार्ट किया, इसके बिल्कुल पास ही आपने इसको कवर करना, आपका बेस नहीं दिखना चाहिए। मैं इसको यहाँ से चेंज कर, अगर आपको लग रहा है पास है या इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर से पास लेके आ सकते हैं। इसी तरह से देखो ये सारा जो है मैंने इस तरह से ये अपना जो कंटेनर है मेरा उसको मैंने लाइक दिस ये कवर कर लेना पूरा। डिफरेंट कलर की मैंने इसमें वूल ली है। हमने आपको फ्लावर्स बनाने सिखाए, वही मैंने देखो यहाँ पेस्ट किए हुए हैं। डिफरेंट स्ट्रेट भी कर सकते हो आप इसको, डिफरेंट शेप्स में साइड में भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये मैगजीन होल्डर बन जाएगा। ये भी हमने वूल से ही आपकी आइटम प्रिपेयर हुई है। ये भी हमने एक बॉटल ली है। बॉटल को ये जो हमने डिफरेंट स्ट्रिप्स, ये हमने एक्सरे शीट होती है ना, वेस्ट एक्सरे शीट है, उसमें स्ट्रिप्स कट कर ली और उन स्ट्रिप्स को भी हमने वूल से कवर कर लिया। देखो ये सारी वूल से हमने कवर कर ली और वूल से कवर करने के बाद हमने इनको थोड़े प्लेस पे ये यहाँ पर हम इसको बॉटल पर टेप के साथ अटैच करते रहे। एक लाइन आपकी कवर होगी, फिर यहाँ से दूसरी लाइन शुरू कर दी आपने, फिर थर्ड लाइन। जितनी बड़ी बॉटल है उतनी बॉटल आपने ये स्ट्रिप से कवर कर देंगे और ये भी आपका एक फ्लावर पॉट बन जाएगा। तो ये जो भी आपने बनाई है हम उसकी पिक्स मंगाएंगे और आपने हमें ब्यूटीफुल सी आइटम बनाकर पिक्स जो है उसकी सेंड करनी है। अब आप देखो कि आपके मम्मा आपको डांटे ना कि आपने क्या किया है, आपने जो भी आपका वेस्ट गार्बेज कुछ था आपने साथ के साथ जो है एक डस्टबिन या किसी कैरी बैग में आप साथ के साथ डालते रहो। याद रखना कुछ भी आप क्राफ्ट वर्क करते हो तो नीटनेस का आपने स्पेशली ध्यान जरूर रखना है। तो देखो स्टूडेंट, अब ये मटेरियल आप एक बार फिर से देख सकते हो। ये सारा मटेरियल मैंने एक बॉक्स में रखा है और आपने भी ऐसे रखना है। ठीक है, नीटनेस का बहुत ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मेरा टेबल देखो कितना क्लियर है और ये जो मैंने आज ये चीज़ें बनाई है ये भी आपके सामने है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स for joining us. Hello everyone, how are you all today? So now we will today learn a different form of art that is called the mandala art. So gradually once we are doing it, I will explain to you that how it is done. You don't need many instruments for this, you just need a pen. It could be a thin OHP marker or your sketch pen or a thick marker, a rubber, a scale and a compass. ठीक है, अब ये मंडला आर्ट में आप क्या देखते हो, आपके पास एक स्क्वायर होता है एंड स्क्वायर के अंदर हम सर्कल्स बना के काम करते हैं।
This art is considered to be very relaxing. It is basically used in Hinduism and Buddhism. And इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे ये मैंने फिश बनाई. You could even use this art to enhance the animals. If you make, you could make a giraffe, a elephant, a fish like this, a complete painting with mandala art. जैसे बस आपने जो बॉर्डर बनाया है उसके बीच में आप सर्कल्स बनाओगे कंपास से, सेमी सर्कल्स, एंड बीच में कोई भी पैटर्न्स लेके आप उसमें डिज़ाइन शुरू करोगे. सो दैट इज़ हाउ यू कुड मेक बिग पेंटिंग्स विद मंडला. नाउ वी विल बिगिन विद जस्ट द बेसिक सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ इट इज़ डन. बेसिक मंडला आर्ट, इसमें आपको फर्स्ट यू हैव टू कट योर पेज इनटू अ स्क्वायर एंड मेक अ सेंटर एंड फॉर्म डिफरेंट सर्कल्स at various lengths. Like you see, we've formed around 5 to 6 circles on the page. So you could make it on big papers also, big charts also. Then you take your marker, and in mandala art we always start from the center. It is always done in the center, and then there's a symmetry which is to be followed. We'll just keep coloring. We have already made rough circles on our sheet, and so we will work on those circles gradually. Okay, so now you see, working on the second circle, we make a flower. Likewise, it is always done in geometrical shapes. Like you have to replicate the same pattern on the other side. Starting from the center, replicate this pattern on the other side, and while you're working, if you feel that your pattern looks empty, then you can always draw more patterns. See, like now I felt that before I work on the other circle, I could draw a few more lines. And then what we can do here is, you can play some light music at the back, sit comfortably with some pleasant music of your choice and focus. This helps you build your concentration as well. It's not that it has to be a perfect drawing, it's just a drawing of lines, circles and contrasts. So once you sit down to draw, just plan that working on your circles, you want 3 circles, 4 circles, 5 circles, you want a shape, and gradually you can just randomly fill in those shapes. So gradually we are filling in the pattern wherever I feel that it looks more blank or something. So just lines and circles, as I told you, or triangles. This mandala art actually has a deep spiritual meaning in Hinduism and Buddhism. It's believed that they represent the whole universe, and it's a good exercise for meditation as well. If we visit Buddhist monasteries, we see that there are huge mandalas made on the ground, and the monks would sit in the center of the mandala while they meditated. Now in modern times, we just use it as a simple relaxation technique, following a few patterns just like we are doing now. And one more thing, you could even use dot art here with color. You could make mandalas using color as well. Sit with your sketch pens and you could do it. Draw your lines using scales and just complete the circles which we had drawn. We'll make it for some more time, and then we'll just finish it off. So now we are almost about to complete our mandala art, and I think it just looks beautiful. I hope you all will try it at home, and you could use it with other paintings as well, making it colorful. You could draw flowers in your painting like this, in form of miniature art, and there are various ways to it. Creativity knows no bounds, so let's just go ahead and be creative. Welcome you again in the online classes. I hope you all are doing great and taking the notes very carefully for the English classes. I know you must be getting bored in the lockdown, but the topic we have decided are quite different and unique. So our day 2 topic for the day is slang. Slang means difference between basic and advanced English. And now today is the era of advanced English. So here we are to tell you the difference between basic and advanced English.
I am Basic English. And I am Poonam Sharma in front of you for Advanced English. So let's begin. Okay, I'm happy. I am great. I am great. I'm hungry. I am starving. I am starving. It is raining outside. It's pouring outside. It's pouring outside. I need to go to washroom. Oops, I am bursting. I have eaten much. Now I can't eat more. I am stuffed. I am stuffed. I'm extremely tired. I am wrecked. Or you can use another word that is exhausted. So simple word is I am wrecked. Exhausted or wrecked. Okay, I'm angry on something. I am pissed off. I am pissed off. I didn't catch you. I didn't catch it. Okay, so here are the sentences for basic and advanced English. I hope you guys learn the same, write the same and implement the same. Thank you. Thank you. So here we are with the tip of the day. Our second tip of the day is tongue twisters. And these tongue twisters will be very beneficial for you to enhance your vocab and increase your spoken English. So, tongue twister, first tongue twister for you is I scream, you scream, we all scream for ice cream. Definitely, these tongue twisters will increase your pronunciation too. Peter Pepper picked a peck of pickled pepper. Practice these tongue twisters in your houses and make it note so that you remember. Hello students, welcome back again in the online summer camp which is organized by Anand Public School. I hope you guys are safe and fit at your homes. But today my topic is confidence and body language. I have much tips for you to increase your confidence and body language. But before starting, I tell you to have pen and notebook with you so that you may write each and every point discussed here. Do you think personality comes out of dressing sense? क्या आपको लगता है कि कपड़े आपकी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं? I don't believe so. Personality is much more than dressing sense. So, the first topic for discussing personality development is confidence and body language. So, my tip number one for confidence is look yourself in the mirror. Definitely students, अगर आप अपने आप को देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, तो definitely आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम अप कर पाएंगे. Look and talk to yourself in the mirror. Second thing, practice what you have to speak. कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको practice की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो भी आपका content है, whatever you have to speak, it should be well practiced by you guys. Now third tip to increase your confidence is talk freely. Don't get bounded in something. Please talk freely. जब आप freely बात करोगे तो आप अपने confidence को और ज़्यादा explore कर पाओगे my dear students. Now tip 4. The fourth tip, write down in the notebooks. Fourth tip is talk to people in your comfort zone. जिन लोगों से आप comfortable हो, start from them. उनके सामने अपना viewpoint रखने की कोशिश करो. Talk to them freely and with a good viewpoint. And fifth, my last tip to increase confidence is please see your mentor. जो भी आपका role model है, whatever he speaks, how he talk, how he behave, copy him. I'm not saying कि exactly copy what he is doing. हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है, but please try to inherit some good things from him, what he is acting like. So this is about my confidence. I hope you will implement the same and will meet another day, another students with good confidence level. Thank you. Welcome to the second part of the video, that is body language. In the first part, you have seen how to boost up your confidence by following 5 tips for the day which I have given to you. Now let's come to body language. It is rightly said, body speaks than your mouth. आपकी body ज़्यादा बोलती है आपके मुंह से. What your body say? Try to listen that. अगर आपकी body language अच्छी होगी, definitely you will boost up your personality. So now talking about body language is please don't get shy in front of anyone. Shyness आपकी सबसे कमजोरी है. Don't show anyone कि you are
और थर्ड टिप है आपकी आईज। आईज भी तो बॉडी लैंग्वेज में ही आती है ना। अगर आप अपनी आईज एक जगह पर ही रखोगे कि नो आई एम टेलिंग दिस, नो इट इज नॉट लाइक दैट। Communicating while to one another person, you have to spread your eyes to the every corner of the person where he is sitting. Fine. What I have told you about feet, about your hands, and about your eyes. And always keep your chin at high. Don't look like this कि ऐसे करना है वैसे करना है। That is, आपको अपनी chin को हमेशा high रखना है when you are talking to someone. Always use your head postures when you talk very freely and confidently. And my last tip, when you stand in a dance, stand like this. People stand like this or this. Don't stand like this. Open your hands very freely and put your hands in the dice with your legs open and then speak. Definitely you can move your hands from here and here only. You can put your hands like this also and don't hold dice like this. So this was my last tip to increase your body language. Please implement the points and I know you will come best out of personality. Thank you. Hello everyone, I am Mayank. I am dance teacher in Anand Public School. आज मैं पंजाबी के बेसिक स्टेप्स आपको करवाने वाला हूँ जो आप किसी भी सॉन्ग में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, हैंड्स ऑन वेस्ट एंड लेग्स नॉर्मल हम ओपन रखेंगे, लेग्स ओपन रहेंगे। फर्स्ट स्टेप डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8। हैंड पोस्चर एंड लेग्स सेम रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है ये, राइट साइड डाउन होंगे 2 टाइम्स, 1 2, देन लेफ्ट साइड 3 4। एज इट इज 8 बीट्स कवर करनी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप, हैंड्स स्ट्रेट 6 7 8। यस। फोर्थ स्टेप इज राइट हैंड, सेम हैंड पोस्चर सेम रहेगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नेक्स्ट स्टेप इज दोनों हैंड स्टेप दोनों सेम रहेंगे। राइट साइड दोनों हैंड राइट रहेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। नेक्स्ट स्टेप इज राइट लेग आगे की साइड मूव लेकर आएंगे, लेफ्ट लेग के बिल्कुल आगे आ जाएगी। देन बेंड करना है डाउन थोड़ा सा, देन बैक 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए पहले साइड में रख के करते हैं, देन चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। नेक्स्ट हैंड्स पोस्चर चेंज, लेफ्ट हैंड डाउन, हैंड से राइट हैंड अप। राइट लेग आगे आएगी जब राइट हैंड डाउन हो जाएगा, देन लेफ्ट हैंड ऊपर चला जाएगा, देन बैंड। पीछे जाएंगे जब तो हैंड फिर से चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। इसी में नेक्स्ट स्टेप है, लेग स्टेप सेम रहेगा। हैंड स्टेप में कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है नीचे, ऐसे पीछे की साइड खींच कर रखना है। राइट हैंड को नीचे से स्लो नीचे लेकर जाना है, देन वापस जब आ जाएंगे क्लैप 1 2 3 4 5 6 7 8। लेग स्टेप सेम रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। नेक्स्ट स्टेप इज बेसिक है, ये कॉमन स्टेप है भंगड़े का। राइट लेग अप, देन बाउंस करना है लेफ्ट लेग के ऊपर 1, देन स्लो डाउन, लेफ्ट लेग अप, बाउंस। यस। हैंड्स ऊपर करके भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। इसी के नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट लेग को 2 टाइम स्टेप करना है, जितना हम हाई ऊपर करके हाई लेग को ऊपर उठाएंगे उतना बेटर लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। एंड दोनों हैंड्स को हम अपोजिट
रखेंगे। लेफ्ट लेग अगर चलेगी तो राइट साइड दोनों हैंड्स को स्ट्रेट रखेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यस। लेग स्टेप सेम रहेगा, हैंड स्टेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। राइट साइड हम हैंड्स को सेम रखेंगे, लेफ्ट साइड रोल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यस। लेग लेफ्ट चल रही है तो राइट हैंड चलेगा, राइट लेग चल रही है तो लेफ्ट हैंड चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी दुनिया ने दिलों कड्डिया सी मैं नी तेरे जोगा रब ने तां छड्डिया सी मैं। सारी दुनिया ने दिलों कड्डिया सी मैं नी तेरे जोगा रब ने तां छड्डिया सी मैं। सिंगल सी मैं तू भी कल्ली मिल गई, सिंगल सी मैं तू भी कल्ली मिल गई। झल्ला दिया मैं तू भी कल्ली मिल गई, झल्ला दिया मैं तू भी कल्ली मिल गई, झल्ला दिया मैं तू भी कल्ली मिल गई, झल्ला दिया मैं तू भी कल्ली मिल गई। ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕੂ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਪਿਆਰ ਨੀ, ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਪਿਆਰ ਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੀ, ਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਝੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਝੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। Okay student, we have completed our first song. Now we are going to start our second song, that is fusion classical dance. जहाँ से हमने मूवमेंट स्टॉप की थी हम दूसरे वाले सॉन्ग का वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड द सॉन्ग वर्डिंग इज कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, लाइक दिस। इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते रहिए वन स्टेप। जैसे आपको लगेगा कि यू आर कंफ्यूज, आप दोबारा से वीडियो रिप्ले कीजिए और फिर से देखिए और फिर से फॉलो कीजिए। मोहब्बत वाला, उसका फर्स्ट मोमेंट दिस वन, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी। दिस मोमेंट वी विल हैव टू डू दिस टाइप ऑफ मुद्रा, जान जान, यस। इसमें जब भी आप राउंड लोगे तो एकदम झटके के साथ आपने वापस आना है और झटके के साथ आपने मूवमेंट करनी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ओके ये स्टूडेंट, जो हमने पैरों की मूवमेंट की है लाइक दिस, वो आप रिदम के अकॉर्डिंग और अपने मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से चेंज भी कर सकते हैं और पैरों को इस तरह से चला भी सकते हैं। दैट्स ऑल, नमस्कार। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान।